طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بڑے شاندار کالم نگار، تجزیہ نگار ہیں، اور بڑا جو چند سینئر جن کے پاکستان کی سیاست کے اوپر گہری نظر ہے، رؤوف طاہر صاحب اس کا حصہ ہیں. رؤوف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. رؤوف صاحب، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ اگر فضل الرحمان صاحب بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے، جیسے ان کے رویہ میں تھوڑی نرمی آتی جا رہی ہے، تو مریم اکیلی رہ جائیں گی؟ نہیں، یعنی اگر آپ نے رات جاتی عمرہ میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا کی گفتگو سنی ہے، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ مولانا آگے پیچھے ہو جائیں گے اور مریم تنہا رہ جائے گی، میرے خیال میں تو یہ کوئی مناسب اور درست بات نہیں لگتی مجھے. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک مناسب سوال نہیں کیا؟ تو نہیں، آپ نے مناسب سوال کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ جیسا سینئر آدمی غیر مناسب سوال کیسے کرے گا؟ اور سیاست میں تو سب کچھ ہی ممکن ہوتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مولانا نے جتنی سخت گفتگو کل رات کی ہے میڈیا کے ساتھ، اس کے بعد آگے پیچھے ہونے کا فی الحال تو کوئی امکان نظر نہیں آتا. سر، میں نے یہ مفروضہ اس بات سے قائم کیا کہ دیکھیں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اب سے کچھ دن پہلے کہ پیپلز پارٹی دودھ میں سے مکھی کی طرح ایسے نکل جائے گی اور دودھ بھی ان کے پروں پہ نہیں لگے گا اور وہ ہوا میں اڑتے بھی پھریں گے. نہیں، یعنی دودھ میں سے مکھی کی طرح پیپلز پارٹی کیسے نکل گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک. ان کا بیانیہ، انہوں نے پی ڈی ایم کا سارا بیانیہ رد کر دیا. نہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ استعفے دینا چاہتے ہیں. انہوں نے ضمنی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا. بلاول بھٹو جو ہے کل جاتی عمرہ کے اجلاس میں نہیں آئے. یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں سر؟ 20 ستمبر کے اجلاس میں یا کھانے میں جس کے میزبان خود بلاول زرداری تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، اور جس میں پی ڈی ایم کی تشکیل کی گئی، اس میں جو کوئی تقریباً 25-26 نکاتی جو راہ عمل دیا گیا اور جو اہداف متعین کیے گئے، ان میں سے کسی میں یہ ایک نقطہ بھی یہ نہیں تھا کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے یا بائیک آؤٹ کریں گے اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کیا ہوگا. دیکھیں، بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے، جس کا واضح طور پہ اعلان کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ 31 دسمبر تک تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ارکان قومی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اپنے استعفے اپنی پارٹی کے لیڈر کے پاس جمع کرا دیں. چنانچہ رپورٹ یہی آئی کہ پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، جے یو آئی بھی اور باقی بھی جو جماعتیں ہیں، 10-11 جماعتیں، اور جن کے ارکان اسمبلی ہیں قومی یا صوبائی اسمبلی میں جن کی نمائندگی ہے، ان سب کے ممبروں نے اپنے استعفے جو ہے وہ جمع کروا دیا لیڈرشپ کو. اب یہ استعفے کب دینے ہیں، ظاہر بات ہے یہ اسٹریٹجی کا معاملہ ہے کہ کب دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، اور اس کے لیے پراپر وقت کون سا ہوگا، کب لوہا گرم ہوگا کہ جب چوٹ لگائی جائے گی. اور جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، تو یہ تو کل خود شیخ رشید بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں سینٹ کے الیکشن کے بائیک آؤٹ کا امکان نظر نہیں آتا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں. انہیں یہ امکان بھی نظر نہیں آتا کہ استعفے دیں. البتہ لانگ مارچ کے تک ان کا کہنا ہے کہ یہ ضرور ہوگا ان کی اطلاع کے مطابق، اور ان کے بقول انہوں نے اس کی مناسب تیاری بھی کر رکھی ہے. وہ اسلام آباد میں آئیں گے تو ان کی مناسب خاطر تواضع کر دی جائے گی. خاطر تواضع کیا ہوگی سر؟ کیا وزارت داخلہ جو ہے کو دیگے شیگے دے گی، کیا کرے گی؟ کیا یعنی خاطر تواضع سے مراد یہ ہے، شیخ صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ چترال ہوگی. آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب کے پیش رو جو تھے بریگیڈر اعجاز صاحب، جب وہ وزیر داخلہ تھے، تو گزشتہ سال انہوں نے کہا تھا، گزشتہ سال سے مراد 2019 کی بات ہے، گزشتہ سال تو ستمبر پی ڈی ایم کے قیام سے پہلے کوئی ایسی واضح طور پہ ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ احتیاط کریں، گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں یعنی اس بار
गर्मियां बड़ी शदीद होगी और जेल की गर्मी तो वैसे भी बड़ी शदीद होती है। तो अब ये जो है ये निस्बतन सर्दी के मौसम में जाएंगे और खातर वादू से मुराद शेख साहब चित्रौड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं उसके लिए। सर रऊफ साहब, मुझे आज आपने देखा होगा शेख रशीद साहब ने कहा कि अब जो फौज के खिलाफ बयान देगा 72 घंटे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उनका कि मैं खुद कराऊंगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर आप मुकदमा दर्ज कराएंगे तो आपकी वजारत नहीं रहेगी। तो क्या ये गीदड़ भपकियाँ या हुकूमत वाकई कोई डिसीजन ले चुकी है कि अब अगर किसी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो उन पर मुकदमा होगा? नहीं, मौलवी किफायतुल्लाह साहब जो है मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, उनकी मिसाल आपके सामने है कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने अपने 1-2 टीवी इंटरव्यूज में जो गुफ्तगू की और शेख रशीद के ख्याल में या हुकूमत के ख्याल में वो काबिल इतराज़ सी फौज के हवाले से। चुनांचे आपने देखा कि कल बानसेरा में उनकी रहायशगाह पे छापा मारा गया उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो हाथ नहीं आए तो उनके भाई को और गालिबन एक आध और रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 16 साल बेटे को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन खबर ये आ रही थी थोड़ी देर पहले कि मुअज़्ज़िज़ीन शहर की मुदाखलत पे वो बच्चे को छोड़ दिया गया है और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो है वो अभी हाथ नहीं आए। तो वह मुकदमा भी कायम हुआ है, गिरफ्तारी के लिए छापा भी मारा गया है। तो ये इस बात की अलामत है कि ये शेख साहब की महज गीदड़ भपकी नहीं है, बल्कि वो इस पर अमल भी करेंगे। रऊफ साहब हमारे साथ रहीगा, मियाँ हबीब साहब हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। मियाँ साहब, अगर शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने कहे हुए पे अमल करते हैं और इस पे 3-4 बड़े लोगों पे पर्चा दर्ज हो जाता है तो हालात तो और बिगड़ेंगे। मेरा ख्याल है हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले जाएंगे। नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन तिलों में इतना तेल नहीं है। ये अगर बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाए ना तो आजकल का वर्कर वो वाला वर्कर नहीं है। माँ सवाए को थोड़ी सी जान जिस वर्कर में है वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के वर्कर में थोड़ी सी जान है, लेकिन वो भी उनकी जमात जो है ना टूट फूट का शिकार है। वो भी मुख्तलिफ उन्होंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है अगलों ने। लेकिन ये भी दूसरी तरफ ये देखें कि इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है खित्ते में उसमें इंतशार पैदा नहीं किया जा सकता। फौज के खिलाफ अगर खुली छुट्टी दे देंगे और कोई कार्रवाई हुकूमत नहीं करती तो ये सारे लोग जो हैं ये तो सर पे स्पीकर लगा लेंगे। और ये बयानात है मियां अभी मतलब फौज के खिलाफ कोई इस तरह तो नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आज मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं जी कि हम जो है वो रावलपिंडी में जाके धरना देंगे। उसका क्या होता है, उससे क्या फर्क नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है। ये क्यों रऊफ साहब, क्या आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी धरना देने की बात दुरुस्त नहीं है मौजूदा हालात में? मेरी आवाज आ रही है रऊफ साहब आपको? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है रऊफ साहब आपको? हाँ जी आ रही है, लेकिन कुछ मध्यम हो गई है। चले, मैं ये कह रहा हूँ मेरी आवाज को अवाम की आवाज ही समझें जो मध्यम हो जाती है ना सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये कोई दानिशमंदी है कि आप पिंडी का नाम लेके कहें कि जी हम वहां पे धरना देंगे, तो हम खुद ही मुदाखलत पे मजबूर कर रहे होते हैं कुछ इदारों को? नहीं, देखिए आपने मरियम की कल की गुफ्तगू सुनी होगी, कल की या गालिबन परसों की, जिसमें ये कह रहे थे कि ये मुकदमे कायम करें फौज के हवाले से हमारे खिलाफ, और उन्होंने मुफ्ती किफायतुल्लाह पे मुमकिना मुकदमा जो था, जो अब मुमकिना नहीं रहा बल्कि वाकई दर्ज हो गया, उस पर अमली कार्रवाई करने की कोशिश भी की गई है। तो मरीब में कहना था कि अगर मुफ्ती किफायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी तो हम इमरान खान के वो दर्जनों इंटरव्यूज जो है वो अदालत में लेके जाएंगे जो उन्होंने इससे पहले दिए थे, और जिसमें उन्होंने फौज पे और फौज के जनरलों पे बड़ी सख्त तनकीद की थी। बल्कि उनका तो ये भी कहना है पीडीएम वालों का कि वज़ीर आज़म बनने के बाद भी अमरीकी ज़राए अबलाग से गुफ्तगू में और इंडिया में भी किसी मीडिया ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बातें की है फौज के बारे में कि जिन्हें जो अगर पीडीएम ने कही है तो उन्हें काबिल एतराज़ करार दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है अपना कि उनका ये कहना है कि हम
बतौर इदारे के फौज का एहतराम करते हैं, बतौर दिफाई इदारे की उसकी खिदमात है और पूरी कौम को उसकी पुष्ट पे खड़ा होना चाहिए गैर मुल्की जारहियत के मुकाबले के लिए। लेकिन उनका कहना यह है कि फौज में अगर कुछ लोग बकौल उनके कुछ लोग जो है वो सियासत में मुलव्वस होते हैं, ये मैं उनका नुक्ता बयान कर रहा हूँ, इससे आपका मेरा इत्तेफाक जरूर नहीं है। जिसका जब हम रास्ता लिखा करते थे तो उसके ऊपर छपा होता था कि एडिटर का मरासा निगार की राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। तो उनका ये कहना है जी कि हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। रऊफ साहब बात कंप्लीट कीजिए अपनी। मेरा ख्याल है कोई लाइन में कोई गड़बड़ हो गई है। मियां साहब, आप रऊफ साहब की बात सुन रहे थे, सही, और उनका ये कहना था कि माजी में अमीरुल अजीम साहब ने भी यही बात की कि माजी में इमरान खान भी इस तरह की गुफ्तगू करते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों को भी जरा एहतियात का दामन, नहीं, या वो मजबूर हो जाते हैं कहने पे? नहीं देखिए, एहतियात का दामन होना चाहिए, लेकिन अब बात जो है ना बातों से आगे अमल की तरफ जा रही है। आप माफ़ कीजिएगा, ये PDM की कुछ सियासी जमातें या कुछ लोग जो हैं, सियासी जमातें मैं नहीं कहूँगा बल्कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है और जिनको ज़ाती तौर पर तकलीफ़ हो रही है, वो ये, और वो मुतासरीन में से शामिल हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को इकट्ठा करके फ़ौज के सामने ला खड़ा करें। लेकिन ना पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि वो फ़ौज के सामने जाके खड़े हों, और ना ही फ़ौज चाहती है कि वो इस किस्म का माहौल पैदा हो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा उससे पहले। और ये हालात जो हैं, ये अगर देखें आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इससे पहले आज तक पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने नहीं ये कहा कि हम GHQ का गिराव करेंगे, हम रुख जो है वो रावलपिंडी की तरफ करेंगे। तो ये मामला कुछ और है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये माफ़ कीजिए, मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं, मुल्क में जो है फौज के खिलाफ खाना जंगी की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। क्या मियां हबीब साहब का मौक़िफ़ है कि ये बयानात खाना जंगी फैला रहे हैं और अनारकी की तरफ मुल्क जा रहा है? आप समझते हैं कि इन बयानात से कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है? नहीं, देखें, अगर फौज और अवाम जो है ये बराह रास्त सामने आ जाते हैं, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, और पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगरचे बाज़ फौजी हुक्मरानों के अदवार में लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने फौज के खिलाफ भी नारेबाजी की। आपको मालूम है कि मुशर्रफ के दौर में जब चीफ जस्टिस मूवमेंट चल रही थी और इसी दौरान मिलान मस्जिद का सानिया भी हुआ था, तो कैसे कैसे नारे जो थे वो नहीं लगते थे। अच्छा सर, वो तो सर एक सिचुएशनल वो थी ना, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से तो प्रोवोक नहीं किया जा रहा था अवाम को, या उन्हें इश्ताल नहीं दिलाया जा रहा था। आप समझते हैं कि इन मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस, ये बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि एक सर्विंग लीडरशिप जो है फौज की और उससे मुल्क एक और अहम इदारे की, जिसके लीडर को जिसके लीडर्स को एक एक करके तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये नहीं बनना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस बात का भी एहतमाम होना चाहिए कि कोई ऐसा अक़दाम ना हो किसी तरफ से कि जिसके नतीजे में हमारा मोहतरम और बावकार इदारा जो है, जिससे मोहब्बत मेरे, आपके और आपके तमाम नाज़रीन के सियासी ईमान का और बुरवतनी का तकाजा है, वो मुतनाज़ा हो और उसके बारे में शिकायत पैदा हो। ये बड़ा ही नाजुक काम है, बहुत जी नाजुक बिल्कुल काम है, बिल्कुल, जिसके सत्ते में आपकी कोशिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रऊफ ताहिर साहब।